نے رب اگے بندے اگے انہیں نہیں چکنا کمول اچھا کرنے والا دوست ہوے اور جا رہا ہے اور بتایا کچھ اور جا رہا ہے. یہ تو میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا 8 فروری کو کیا ہوا. السلام علیکم جو دوستوں، دن میں رات عثمان اسلم ہوں اور آج ہم موجود ہیں انارکلی میں. یہ حلقہ ہے NA 130 جہاں سے نواز شریف اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا بہت بڑا انتخابی معرکہ تھا، اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اس کے نتائج کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور آج ہم بات کریں گے اس الیکشن کی جو 8 فروری 2024 کو پاکستان میں ہوا اور جس کے نتائج کا آج تک اعلان نہیں ہو سکا. کم و بیش 10 دن گزر گئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کون ہوگا، حکومت کس کی ہوگی، تو عوام کی اس پہ رائے کیا ہے، آئیے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا گڈ نیم؟ فیصل مقصود. فیصل مقصود بھائی، آج کا ہمارا سوال تو آپ جانتے ہیں، تو آپ کی اس کے بارے میں ذاتی رائے کیا ہے؟ جی الیکشن جو تھے وہ ہونے سے پہلے اتنے زیادہ متنازع ہو گئے تھے، تو سارا میڈیا جو تھا، عالمی میڈیا بھی بات کر رہا تھا کہ ایک پارٹی کا آپ نے سمبل چھین لیا ہے، ٹھیک ہے. پھر ان کے امیدواروں کو ڈاکومنٹس نہیں آپ نے جمع کرنے دیے. ان کے جو تھے آروز تو تھے، وہ ٹرینڈ یہی تھا کہ آپ جو بیوروکریسی سے نہیں لگاتے تھے، آپ وہ عدلیہ سے لگاتے تھے کیونکہ ان کا مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ اس دفعہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ وہ آروز بھی جو تھے وہ بیوروکریسی سے لگا لیا، جن کو مینیج کرنا بھی آسان تھا. تو اس لیے یہ جو ساری افراتفری آپ دیکھ رہی ہیں، سارا اس وجہ سے ہے کیونکہ جو پہلے الیکشن کمیشن کا جو رویہ تھا، وہ میں کہتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے متنازع ترین جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس ٹائم ہے. اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں حکومت کس کی ہوگی اور عوام کسے قبول کرے گی؟ عوام تو اسے قبول کرے گی جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے. تو سب سے زیادہ ووٹ تو انہوں نے عمران خان کو دیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ PTI کی گورنمنٹ آئے. لیکن فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ ایک کو وزیر اعظم انہوں نے باہر سے وہ لائے تھے کہ اس کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے، تو اس کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. اب کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ زبردستی اس کو بنایا جائے. لیکن اگر تو فارم 45 کے مطابق رزلٹ دیتے ہیں تو پھر تو ان کی گورنمنٹ کبھی بھی نہیں بن سکتی. آپ نے فارم 45 کا ذکر کیا ہے، کیا آپ اس الیکشن سے پہلے فارم 45 اور فارم 47 کے بارے میں کچھ معلومات رکھتے تھے؟ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ انفارمیشن آتی جا رہی ہے. جس طرح لاسٹ ٹائم 2018 کا الیکشن ہوا تھا، اس میں بھی یہی ایشو آیا تھا. وہ EMS سسٹم تھا، وہ بیٹھ گیا تھا. اس لیے یہ ابھی سے ہی پہلے سے ہی پلاننگ تھی. PTI نے پہلے سے ہی کہا ہوا تھا کہ آپ نے فارم 45 جو ہے وہ لازمی لینا ہے اور اس کے اوپر سائن کرنے ہیں. تو اس لیے جو انفارمیشن ہے وہ ایسا ایسا عوام کے پاس آ رہی ہے. تو ہمیں پہلے سے آئیڈیا تھا کہ فارم 45 کیا ہے اور اس کے بعد 47 کیا ہے. جی بہت شکریہ. آج 18 فروری ہے اور پاکستان میں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ حکومت کس کی ہے اور وزیر اعظم پاکستان کون ہوگا. ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا اس ملک پاکستان کا مستقبل، اور یہ آپ کے نزدیک کیسا عمل ہے؟ یہ بالکل غلط عمل ہے. اس کا اناؤنسمنٹ ہو جانا چاہیے. جو سیٹیں جیتی ہیں، کوئی بھی جماعت ہو، جو جیتی ہے اس کو میرٹ پر فیصلہ کر کے وزیر اعظم بنائیں، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہے. حالات اس طرح کے ہیں پہلے ہی کہ اب مطلب کوئی بھی حادثہ ہونا وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا ملک اس دہانے پہ ہے کہ نا جلد از جلد وزیر اعظم آئے، وہ اپنی سیٹ سنبھالیں، اور ہماری دعا ہے کہ جو بھی آئے نا وہ ملک پاکستان کے لیے بہتر کرے کچھ. اچھا، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ممکن ہے یہ جو الیکشن ہے، کہا جا رہا ہے دھاندلی کا بہت زیادہ شور ہے، یہ الیکشن کل عدم ہو جائے اور نگران حکومت جو ہے وہ ویسے ہی چلتی رہے اور بعد میں دیکھیں کیا بنتا ہے. تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ہمارا ملک کوئی ایسا نقصان برداشت کر سکتا ہے، یا ہمارے قومی خزانے میں اتنی مال و دولت ہے کہ ہم یہ چیز برداشت کر سکیں؟ نہیں، نگران سیٹ اپ کو تو گھر جانا چاہیے. جو مطلب ہمارا قانون ہے، جو ہمارا قانون کہتا ہے وہ 3 ماہ کے لیے آتا ہے. ویسے بھی اس کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، تو اس کو نا جلد از جلد اپنے جو انہوں نے فرائض دے لیے ہیں نا، ٹھیک ہے، جیسے بھی تھے ختم ہو گئے، اب وہ جائیں اور جو نیا وزیر اعظم ہے جو عوام چاہتی ہے اس کو آنا چاہیے. جی بہت شکریہ اقبال بھائی. نے رب اگے بندے اگے انہیں نہیں چکنا کمول اچھا کرنے والا دوست ہوے یہ حل ہونا چاہیے کہ مین بندہ ہے بھاویں جویں نہ بھی ہے، وہ آنے والے وقت کا سیبس بھی ہے تو انہوں پتا گیا وقت آئیں تے آئیں. اوکے عمران خان تو جیل ہے تو کیویں باہر آئے گا؟ آئے گا باہر، ذرا پھرن ٹرن گیا پھر آپ ہی آ جائے گا ذرا. اچھا جی، انہوں کا خیال ہے کہ عمران خان جیل پھرن ٹرن گیا ہے تو آپ ہی باہر آ جائے گا. یہ گل چاہتے ہیں جی، کوئی جہاں بھی آئے کوئی چنگا کوئی نیک آئے، مستقبل غریباں کا سوچے، کوئی عوام کا سوچے، اپنے ٹھڈ کا نہ سوچے. اسی تو لہٰذا ہی چاہتے میاں عمران خان اچھا ہے، جویں کا بھی ہے بہت اچھا ہے. اوکے. عمران خان کیوں اچھا ہے انکل جی؟ تسی کیا میاں عمران بڑا اچھا ہے، کیوں اچھا ہے، کی وجہ ہے؟ بقایا جہاں کھڑا ہوتا ہے نا وہ ہیرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی،
नाम है जी आपका? जाकिर नाम है मेरा, हाफिज जाकिर, जाकिर भाई कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मानसेरा। मनसेरा से। जाकिर भाई आप ये बताएं, हालिया जो इलेक्शन हुआ है इसके नताइज के हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपकी ज़ाती राय क्या है और आप इसके नताइज को किस हद तक कबूल करते हैं? हम तो जिसको लाना चाहते हैं ना उसने आना नहीं, और इन्होंने लाना नहीं है। ठीक है, आप किसे लाना चाहते हैं? हम लाना चाहते हैं लब्बई को, उसको इन्होंने आने नहीं देना। किसको लाना चाहते हैं? लब्बई को। अच्छा, तहरीक लब्बैक को आप लाना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या समझते हैं तहरीक लब्बैक अगर इक़्तिदार में आ जाए तो कितनी बेहतरी हो सकती है, और क्या वाकई पाकिस्तान में वो जमात इक़्तिदार में आ सकती है? आ भी सकती है अगर ये लाना चाहें तो। देखा अगर पूरे वर्ल्ड में ये से क्या मुराद है, अवाम लाना चाहे या ये लाना, ये से क्या मुराद है आपकी? ये तकरीबन 10 साल से तो मैं वोट दे रहा हूँ। ठीक है, इसी को ही दे रहा हूँ। इनका नामो निशान नहीं आता कि वो दिखाएं ना, इतना भी दिखाएं कि इनको दिखाते हैं तस्वीर वीडियो में दिखाते हैं कि इसको इतना वोट डला है, उनका तो ये भी नहीं बताते कि लब्बई का नाम भी है या नहीं। ठीक है, हम तो पागल तो हैं नहीं, वोट डाल के आए, एक भी वोट सबका दिखाना चाहिए। ठीक है, दिखाना चाहिए कि नहीं? वो दिखाते ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत पे जो बात होती है ना, ये क्या नाम है इसका, गुस्ताखी करते हैं हर जगह पे, उस पर अमन हो जाएगा, वो कोई नहीं कर सकेगा। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ उबैदुल्लाह है सर। जी उबैदुल्ला भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात जो आपके सामने हैं, इलेक्शन हुआ और अभी तक हुकूमत किसी की नहीं आई, किसकी हुकूमत आती हुई देख रहे हैं और मुल्की हालात पे क्या तज़िया करेंगे? मुझे तो फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है ना, ये मुल्क के हुक्मरान तो चला नहीं रहे, इनके पीछे हमें जो है ना कुछ हालात और नज़र आ रहे हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है और बताया कुछ और जा रहा है। ये तो मैंने भी देखा और आपने भी देखा 8 फरवरी को क्या हुआ। जो रात को जीत रहे थे वो दिन को हार गए, और जो दिन को हार रहे थे, रात को हार रहे थे, वो दिन को जीत गए। तो इससे ये साफ ज़ाहिर मालूम हो रहा है कि पीछे जो प्लानिंग है ना वो बहुत बड़ी है। तो इस वक्त मुल्क बेहतरी की तरफ जाता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। आप किसकी हुकूमत बनती हुई जो है वो देख रहे हैं? बज़ाहिर तो फ़िलहाल जो नज़र आ रही है, जो जीता हुआ है वो उनको तो हुकूमत दे नहीं रहे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट थे वो जीते हैं और उनके पास सीटें भी ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी हुकूमत बनते हुए नज़र नहीं आ रही। अब जो बाकी सूरत नज़र आ रही है तो वही आएंगे जो पहले आ रहे हैं 75 साल से, जैसे कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या मिसाल के तौर पर जरदारी साहब आ रहे हैं, ये दोनों मिल के आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वही आएंगे, नए आने का कोई चांस नहीं है, कोई तब्दीली का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। जी उबैदुल्ला भाई, आपका बहुत शुक्रिया। क्या नाम है मेरे भाई का और कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम असद है और मैं गुजरावाला से आया हूँ। असद भाई, पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उनका अभी तक नतीजा जो है वो नहीं आया और अभी पता नहीं है कि हुकूमत किसकी बनेगी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन होगा। एक आम आवाम होने की हैसियत से आपकी ज़ाती राय क्या है? ये मेरी ज़ाती राय यही है कि अभी तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था और जो मैंडेट डिज़र्व करते थे उन्हें मैंडेट मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं आ रहा, तो ये अफसोस कुन है। क्या समझते हैं एक नौजवान होने की हैसियत से कि जो अवामी मकबूलियत किसको है, कौन सा ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल है? जी अभी तक तो कैदी नंबर 104 इमरान खान ही हर दिल अजीज़ हैं, हमने उन्हें ही वोट दिया था, उन्हें ही जिताया था, लेकिन हमारे वोटों पे डाका डाला गया और वो अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा कि आगे। आपको क्या लगता है कब तक पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला जाएगा और अवाम के मैंडेट पे डाका डाला जाएगा? जी मेरे ख्याल से जब तक इस्टेब्लिशमेंट के हाथ जो हुकूमत के पीछे होते हैं, जब तक वो नहीं हटेंगे तो तब तक तो कोई नहीं हल हो सकता इस मुल्क का। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि वो ये ना करे और अपना काम करे। जी बहुत शुक्रिया जावेद भाई। पाकिस्तान के जो हालात हैं, आज 18 फरवरी और अभी तक कोई हुकूमत नहीं बनी, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मुल्क को कितना नुकसान होगा जमहूरी अमल के ना होने से या हुकूमत के ना बनने से? भाई ये नुकसान तो बहुत है। हम तो सोचा कुछ चलो नवाज शरीफ आ गया, शायद हमने उससे आस लगाई थी कि बिजली के बिल कम हो, जरदारी ने भी बढ़ा दिए, इमरान खान ने भी बढ़ा दिए, शहबाज शरीफ ने भी बढ़ा दिए, एक पे आस लगाई थी नवाज शरीफ पे, वो भी कोई सीटें नहीं मिली, पीछे हट गया। अब वो कह रहा है मैंने घूमन नहीं लेनी। तो आप इस बात से उदास हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा? हम दास हैं, बहुत ज़्यादा दास है नवाज शरीफ से। उनके ना होने से कितना नुकसान हो सकता है मुल्क को? बहुत नुकसान हो सकता उसके ना होने। हमने आस लगाई है सब ने कि शायद वो आ गया तो बिजली के बिल
पानी के बिल, सुई गैस के बिल, सब कम हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ एक बात देखें ना, अगर नवाज शरीफ नहीं आ रहा, अभी नवाज शरीफ नहीं आ रहा, तो शहबाज शरीफ तो वजीर आज़म उसने नामजद कर दिया है। शहबाज शरीफ तो हम लोग उसको पसंद ही नहीं करते। अब जब से उसे 16 महीने की उम्र ली है ना, हम तो उसको पसंद ही नहीं करते। और उसकी बेटी जो है नवाज शरीफ की मरियम, हाँ, वो भी अच्छी है उससे। अभी वो वजीर आला बनेगी तो पंजाब का मुकद्दर तो बदल सकता है। ना बदल सकता, अल्लाह करे बदल जाए। शहबाज शरीफ ने 16 माह की आपने हुकूमत का जिक्र किया, उन्होंने ली, और आप उस क्या ऐसी आप देखते हैं कमी? जो इधर दिहाड़ी लेते सारे बिल देते जा रहे थे हम, बच्चा ही कुछ नहीं था। उसने तो एंड कर दिया, जो होना चाहिए नहीं करना चाहिए था, जो उसने कर दिया पागल ने। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अब नवाज शरीफ आए, बस अल्लाह करे नवाज शरीफ आए। कोई जी बहुत। बिजली आमिर भाई लाहौर के आप हैं या कहीं बाहर से? लाहौर का हूँ। अच्छा लाहौर के। इसी जगह का जहाँ खड़ा हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है, लड़े चुके हैं नवाज शरीफ और जो यास्मीन राशिद हैं, तो आपकी क्या राय है कि अभी तक मुल्क की कोई हुकूमत सामने भी नहीं आई, तो क्या कहेंगे इन हालात के हवाले से आप? क्या वजह है, क्यों नहीं अभी तक नॉमिनेट हुआ कोई एक आदमी? क्या वजह क्या है? बस यही सवाल है आपसे असल में। मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि क्या गड़बड़ है। मैं खुद क्या मुल्क की तारीख में ऐसा पहले कभी हुआ है या पहली दफ़ा ये सूरत हाल आप देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम हुआ है ये, मैं तो पहली दफ़ा सूरत हाल देख रहा हूँ। मेरी ड्यूटी लगी हुई थी हल्का 118 में, वहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ साहब के कैंडिडेट खड़े हुए थे और मुख्तलिफ सूबाई में खड़े हुए थे, उनके साथ अलीम खान साहब थे, ये तमाम लोग थे। वहाँ पे फेयर इलेक्शन हुआ है जो मैं करवा के आया हूँ। बाई गॉड मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, नमाज़ पढ़ के आया हूँ। अभी मैंने बकाया पढ़नी है कि वहाँ पे जब हमने गिनती की, सब कुछ किया, शेर जो था वो पहले नंबर पे आ गया था NA में। सूबाई में एक गालबन क्रेन थी और एक था मेरा ख्याल है दाना लूडो का। अब मुझे कन्फ्यूज़न ये था कि पता नहीं है किसका है, बाद में पता लगा था दाना PTI का था और वो जो थी क्रेन वो लबैक वालों की थी। सेकंड नंबर पे वहाँ पे लबैक आई थी, जो हमारे बूथ बने हुए थे 1-2 मुख्तलिफ बूथ बने हुए थे उस स्कूल में। गर्ल्स हाई स्कूल था, 4 बूथ बने हुए थे। जो 1-2 हमारे पास था उसमें तो 1 पे हमजा शहबाज और सेकंड पे क्रेन आई थी लबैक वालों। ठीक है। अच्छा अभी तक हुकूमत का ऐलान नहीं हुआ, तो मुमकिन है कि नवाज शरीफ की हुकूमत बन जाए। ये फैसला कैसा है कि नवाज शरीफ ने ख़ुद वज़ीर आज़म बनने की बजाय अपने भाई को वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़द किया है? वो वजह ये है कि उसको वज़ारत उज़्मा के लिए इसलिए नामज़द किया है कि वो सारा जानता है अपने पंजाब के बारे में, ब्यूरोक्रेट के बारे में, तमाम लोगों को कि मैंने किस तरह हैंडल करना है। इस वजह से उन्होंने शहबाज शरीफ को सिलेक्ट किया। पहले नवाज शरीफ थे 1998 में, 1998 में वो थे नवाज शरीफ। उन्हीं की वजह से शहबाज शरीफ साहब आए। पहले वो उनका नाम था, फिर ये आगे चलते आए, पर हाथ उन्हीं का है, बाकी काम इनका है। ये चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे होते हैं ना, तो इन्हें पता होता है मैंने कैसे काम लेना है कैसे नहीं। ये वजह है। ठीक है। क्योंकि तो अभी आप समझते हैं कि अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है? मैं कह रहा हूँ कि अब अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो मुस्तकबिल बेहतर होना चाहिए ओवरऑल तमाम सूबे का। अच्छा यहाँ सवाल ये है कि अभी तो वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को जो है वो नामज़द किया है नवाज शरीफ ने, तो उन्होंने जब कैंपेन की वहाँ ऐसी कोई बात नहीं, बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं उनके जाने से। इस हवाले से क्या कहेंगे? किन के जाने से? नवाज शरीफ के जाने से। वो कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, शहबाज शरीफ को बना तो दो। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ बने, नवाज शरीफ बने, घर तो एक ही है। उनकी बेटी बनेंगी वज़ीर आला, वो वज़ीर आज़म, और क्या चाहिए? इतने बड़े 2 ओहदे मिल जाएंगे तो फिर और क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ ये चाहिए, देखें आप निकले हुए हैं अपने रोज़गार की खातिर जी। और किस खातिर है? अपने पेट की खातिर निकले हुए हैं। आप देखें जब पाकिस्तान खुशहाल होगा, इसमें महंगाई कम होगी तो हम लोग खुशहाल होंगे कि नहीं? हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें, ना हम लड़ेंगे आपस में, जो शादीशुदा लोग हैं, बच्चे जिनके हैं, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। जिस वक्त महंगाई कम होगी हम सब इंजॉय करेंगे, महंगाई ज़्यादा होगी हम सताए हुए होंगे, घर में जाके लड़ेंगे, ज़हनी टेंशन होगी, प्रॉब्लम होगी। जो कैदी नंबर 804 है इमरान खान, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं क्या कहूँगा, मुझे तो समझ नहीं आई कि उसने क्या किया है। अब आप देखें कि मैं दूसरी तरफ चलाता हूँ गाड़ी, पहले उससे पहले गाड़ी इंसान लेता था, इजीली मैंने ली थी गाड़ी होंडा सिटी और सेकंड हैंड,
तो मेरे पास जगह नहीं थी खड़ी करने की, मैंने सेल कर दी। वो उस वक्त 8 लाख 8.5 लाख की थी, रिकंडीशन मॉडल 7 था। अब देखें वही गाड़ी मैं हिसाब लगा रहा हूँ 25 लाख की, तो ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो नहीं करके गए थे, ये तो वो करके गया है। और अब जो है समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। देखें मेन बुनियादी चीज़ें क्या हैं आपके पाकिस्तान में और ख़ास कर पंजाब में, गैस मिल रही है? नहीं मिल रही। सेकंड बिजली नहीं मिल रही। अब गर्मी आएंगी, बिजली गर्मी हो सर्दी हो, इन दो चीज़ों ने हमें जकड़ लिया है, जिसकी वजह से हम आगे इम्प्रूव ही नहीं कर रहे। हमारा दिमाग ही मूव रहता है, जो कमा लेते हैं हम वही जो है हमें पूरा नहीं पड़ता, और फिर डकैती है, चोरी है, चकारी है, बच्चे ख़राब, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। जी बहुत शुक्रिया।